اور خوف ہونے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دہشت سے، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر دجال میرے زمانے میں ظاہر ہو گیا، میرے زمانے میں اگر وہ نکل آیا، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا، تو میں تم سب کی طرف سے دجال کے لیے کافی ہوں، میں اس کا سامنا کر لوں گا۔ لیکن یاد رکھو، لیکن یاد رکھنا، یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر دجال میرے بعد ظاہر ہوگا، اب رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی دجال ظاہر ہونے والا ہے، اگر دجال میرے بعد ظاہر ہوگا دنیا کے سامنے، لوگوں یاد رکھنا، یاد رکھنا، تمہارا رب اللہ کانا نہیں ہے، ایک آنکھ والا نہیں ہے، دجال ایک آنکھ والا ہے، اس کی ایک آنکھ بند ہے، یعنی ایک آنکھ کانی ہے اور ایک آنکھ ہی اس کی کھلی ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، دجال جب ظاہر ہوگا زمین پر، وہ کہیں تمہیں دھوکہ دینے نہ پائے، وہ کہیں تمہیں فریب نہ دینے پائے۔ اس سے بعد یہ ظاہر ہو گئی کہ جب دجال زمین پر ظاہر ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلائے گا، لوگوں کو خسارے کی طرف بلائے گا، لوگوں کو نقصان کی طرف بلائے گا، لوگوں کو اسلام سے ہٹ کر کسی اور راستے کی طرف بلائے گا۔ لوگوں یاد رکھو، وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن تم یاد رکھنا، تمہارا جو رب ہے، تمہارا جو اللہ ہے، وہ رب کانا نہیں ہے، وہ تو آنکھوں والا، جیسا بھی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دجال ایک آنکھ والا ہے، اس کی ایک آنکھ کانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرما دیا کہ جب تم دجال کا زمانہ پاؤ اور اگر دجال سے تمہارا آمنا سامنا ہو، تو حدیث میں بات نصیحت کر دی گئی کہ تم دجال سے گریز کرو، اس کے سامنے جانے سے، اس سے جو ہے سو بات چیت کرنے سے گریز کرو، اس لیے کہ وہ تم سے ایسی ایسی باتیں کرے گا گویا تم سمجھو کہ وہ تو پکا مومن ہے، لیکن وہ تم کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائے گا، وہ تم کو جہنم کے عذاب کی طرف لے کر جائے گا، وہ تم کو کسی اور راستے کی طرف لے کر جائے گا۔ دجال ایک انسان جو یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، مدینے میں ظاہر ہونے والا ہے، جزیرۃ العرب کے کسی نامعلوم آئلینڈ میں اس وقت زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور اس کی مدت 1 سال 2 مہینے 1 ہفتہ ہے۔ جب دجال کا یہ سلسلہ آئے گا، یہ اتنا ڈیوریشن ٹائم آئے گا، اسی ڈیوریشن ٹائم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر نازل ہوں گے، آسمان سے نازل ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور دجال کی فوج سے جہاد کریں گے، اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جہاد میں مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا، اور وہ آخری جہاد ہوگا۔ اس جہاد کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی دوسرا جہاد نہیں آئے گا، اور اس جہاد میں جتنے مسلمان شامل ہوں گے ان تمام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ جو دجال کے ساتھ جو جہاد کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر، ایسوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور وہ لوگوں کے لیے بھی جو ہندوستان میں جو سو وقت پڑے گا جب کریں گے۔ احادیث آ گئی، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے قتل کریں گے، دجال ختم ہو گیا، فتنہ مٹ گیا۔ دجال پیدا ہوا، دجال قتل ہو گیا، اور جس مقام پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، اس جگہ کا نام ہے، اس مقام کا نام ہوگا لد۔ لد اس جگہ کا مقام ہوگا۔ دجال پیدا ہوا، فتنہ برپا ہوا، دجال مر گیا۔ ہمارا عنوان ہے زمین پر سب سے بڑا فتنہ دجال۔ پیدا ہوا سو بھی بتا دیے، فتنہ ہو رہا سو بھی بتا دیے، ہوئیں گا سو بتا دیے، ہوا تو نہیں، فتنہ ہونے والا ہے سو بھی بتا دیے، دجال مر جائیں گا، قتل کر دیا جائے گا اسلام کے ذریعے، وہ بھی بتا دیے۔ گویا ٹاپک ختم، گویا ٹاپک ختم، تو لوگ گھر کو چلے جانا، لیکن آپ بیٹھے ہوئے، میں آپ کو اور بٹھا کے رکھوں گا۔ اس لیے کہ اب آپ کو کچھ کڑوی حقیقتیں آپ کے ساتھ یہاں سے لے کر جانی ہے۔ دجال پیدا ہوا، دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، 1 سال 2 مہینے 1 ہفتہ ہونے جو سو اس کا تہلکہ مچائیں گا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام میں خطر رہیں گا، دجال مر گیا، فتنہ ختم، خلاص۔ کب اٹھنے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ کو عنوان ہونے کے بعد بھی رکانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ کڑوی سچائیاں آج ہم آپ کی ہتھیلی میں رکھنا چاہتے ہیں۔
दज्जाल, जमीन का सबसे बड़ा फितना दज्जाल। दो, मैंने कहा 3 बातों पर हमारी तकरीर मुश्तमिल है। पहली बात गौर करें कि दज्जाल मदीने में एक यहूदी घराने में पैदा हुआ, इस्लाम लाया, फिर मुर्तद हो गया। इसका मतलब यह है कि दज्जाल का ताल्लुक यहूदियत से है, दज्जाल का साथी यहूदी है। पहला पॉइंट, दज्जाल का ताल्लुक यहूदियों से है, और दज्जाल जो उमर पैदा हुआ वो कहां पैदा हुआ? मदीने में, यहूदी घराने में। पहले पॉइंट को याद रखें, गोया दज्जाल का रिश्ता यहूदियों से है। दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम जो दज्जाल को कत्ल करेंगे, वो दज्जाल का जो मुकाम पे कत्ल किया जाएगा, उस मुकाम का नाम होगा लुद। ये लुद एक ऐसा मुकाम है, आज करंट ज्योग्राफिकल हिसाब से अगर आप देखें, लुद जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, आज लुद उस मुकाम पर है जहां पर इजराइल जो यहूदियों का मुल्क है, आज लुद मुकाम पर इजराइल का मिलिट्री हवाई अड्डा है। पैदा हो रहा है दज्जाल यहूदी के घर में, मर रहा है दज्जाल यहूदी के घर में, और जहां पर आज यहूदी बसे हुए हैं उनका मिलिट्री बेस लुद मुकाम पर है। आप मैप देखकर देखिए, लुद एयर बेस ऑफ आपको इजराइल बोल के मिलेगा। 2 बातें हो गई, दज्जाल यहूदी घराने में पैदा हुआ, दज्जाल मर रहा भी यहूद के घर में है, यानी इजराइल में। यह अजीब बात है कि दज्जाल का रिश्ता इस तरह क्यों यहूदियों से जुड़ा हुआ है, बड़ी अजीब बात है। तीसरी बात जिसके ऊपर हमारी जो पूरी तकरीर मुश्तमिल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जिसके रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ने फरमाया, 2 बातें जहन में रखें, मदीने में पैदा हुआ, यहूदी के घर में, मर रहा यहूदी के घर में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल जब जाहिर होगा दुनिया के लोगों के सामने, तो दज्जाल ईरान के एक शहर अस्फहान से लोगों के सामने जाहिर होगा। ईरान के एक शहर अस्फहान से वहां पर से जाहिर होगा। और इस्फहान नाम का जो शहर है, ये आज भी ईरान में बसा हुआ है। ईरान के एक शहर का नाम है इस्फहान, आज भी वो शहर बसा हुआ है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ईरान के शहर इस्फहान से, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुने, यहूदी के घर में पैदा हुआ, यहूदी के घर में मर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईरान के शहर इस्फहान से 70,000 यहूदी जब दज्जाल जाहिर होगा, उस दज्जाल का 70,000 यहूदी सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे, उसकी फौज बन के उसका काम करेंगे। कितने यहूदी? 70,000 यहूदी ईरान के एक मुल्क इस्फहान से जाहिर होंगे, इस्फहान से निकलकर उसकी मदद करेंगे। और दज्जाल का जो फितना शुरू होगा वो ईरान का एक और एक शहर है जिसका नाम आता है खुरासान। खुरासान से इन्हें अपनी तबाही शुरू करेंगे, ये भी ईरान में ही है। और इस्फहान जो है वहां के 70,000 यहूदी उसका सपोर्ट करेंगे। ये 70,000 यहूदी इस्फहान के मिलकर खुरासान से जो इन्हें अपनी तबाही शुरू करेगा, तबाही ईरान से शुरू करते निकलेंगे, लोगों को जो अपनी तरफ रागिब करेंगे और दुनिया के लोगों को दीन इस्लाम से फेरते चले जाएंगे, जहन्नुम की आग की तरफ बुलाएंगे और खुदा होने का दावा दज्जाल करेगा और ये 70,000 यहूदी उसका सपोर्ट करते चले जाएंगे। दज्जाल इस्फहान। अब आपके सामने एक एक सच्चाई, हर बात को जहन में कीजिए। और अब जो आप तकरीर में बैठेंगे, अपने जहन को वसी करके बैठिए कि दुनियाई उमूर अब आपके सामने खोल के आने वाले हैं। क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशंस है, क्या प्लानिंग्स है, क्या पॉलिसीज है, एक एक छट्टा अब आपके सामने खुलने वाला है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखकर अल्लाह की आयत को अपने सामने रखें और एक एक बात को खुले दिमाग से अपने जहनों में उतार कर इन कुशादा दिमाग के साथ अपनी जिंदगी को आप गुजारें।
खाली नमाज पढ़ लिए, रोजा रख लिए, मस्जिदों को चले गए, खाना खा लिए, पानी पी लिए, 5 टाइम के नमाज पढ़ लिए, जिंदगी नहीं चल सकती। आपको कुशादा ज़हन होना पड़ेगा, ये नैरो माइंडेडनेस छोड़ना पड़ेगा, आपको वसी दिमाग के साथ सोचना पड़ेगा। दुनिया आपके बारे में आज क्या प्लानिंग कर रही है, क्या पॉलिसीज कर रही है, ये तमाम बातें बाप के सामने हैं। दज्जाल को 70,000 यहूदी सपोर्ट करेंगे जब वो इस्फहान शहर से निकलेगा। और इस्फहान जो आज ईरान में शहर है, आज इस्फहान वो शहर है जहां पर ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जहां पर ईरान न्यूक्लियर हथियार का केमिकल बनाता है दुनिया पर अगर हमला करने की नौबत पड़े तो। इस्फहान वो शहर है जहां पर एडवांस्ड एरोप्लेन्स, मिलिट्री एरोप्लेन्स बनाने के ईरान के कंपनीज है, फैक्ट्रीज हैं। और इस्फहान वो शहर है, इस्फहान और ईरान का कैपिटल सिटी तेहरान और एक और शहर है, ये तीनों शहर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुबान से बात निकली, अल्लाह की कसम है, झूठी हो ही नहीं सकती। ईरान ये कहता है कभी आयतुल्लाह खुमैनी के हम अगर मुसलमानों को ऐलान कर देंगे तो मुसलमान एक एक चुल्लू भर पानी अगर इजराइल में डाल दें तो इजराइल डूब के रह जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया 70,000 यहूदी निकलेंगे, वो भी ईरान से निकलेंगे, इस्फहान शहर से निकलेंगे, दज्जाल को सपोर्ट करेंगे जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह करेगा। करंट पोजीशन में जहां ईरान इस्राइल के धमकी देता है इस्राइल को तबाह कर देने की, लेकिन आज भी ईरान के अंदर इस्फहान में, तेहरान में और एक दूसरे शहर में, ये 3 शहरों में मिलाकर अप्रोक्सीमेटली आज कम से कम 25,000 या ज्यादा से ज्यादा 40,000 का अंदाजा है इस वक्त ईरान में यहूदी मौजूद है। 25,000 से 40,000 यहूदी, कम से कम 25,000, ज्यादा से ज्यादा 40,000 यहूदी इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है, वो भी इस्फहान शहर में। हदीस में वाज़ेह अल्फाज आ गए, इस्फहाना ईरान में। और खुरासा का भी अल्लाह के नाम लेकर कह दिया, ये 2 शहर हैं जहां से ईरान में से, खुरासा से निकलेगा तबाही करते हुए, इस्फहान के लोग सपोर्ट करेंगे। बात सामने अब आपके आ गई, अगर आप खुले दिमाग से सोच रहे हैं, तीनों बातें कॉमन हैं। पहली बात, यहूदी के घर में पैदा हुआ। दूसरी बात, यहूदी के घर इजराइल युद्ध में मरने वाला है। और तीसरी बात जो है, इसके सपोर्टर, इसके दोस्त भी जो है वो यहूदी हैं। तो दज्जाल जो आ रहा है, दज्जाल जो जाहिर होने वाला है लोगों के सामने, तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहूदी दुनिया में मौजूद है, ईरान में भी मौजूद है। अहादीस हमारे सामने क्लियर है, हालत हाजरा मौजूदा करंट पॉपुलेशन भी मौजूद है। दज्जाल जाहिर होगा तो ये बात हमारे सामने साफ हो गई कि जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहा था, फरमाते अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कुरान मजीद में तर्जुमा इस तरह है कि मुसलमानों में दुश्मनी से सख्त तरीन अगर कोई है वो यहूद है और मुशरिकीन है। यहूद है और मुशरिकीन है। तो गोया यहूद मुसलमानों के दुश्मन है। और ये 3 पॉइंट से हमारे सामने बात आ गई कि यहूद दज्जाल के दोस्त हैं, यहूद मुसलमानों के दुश्मन है और यहूद दज्जाल के दोस्त हैं। अब ये बात जहन में रखें, जो आपका दुश्मन है और उसका दोस्त है, गोया आप पर वो लोग टारगेट किए हुए हैं कि आपकी नस्लों को तबाह करें, आपके दीन को तबाह करें, आपके कल्चर को तबाह करें। दज्जाल जाहिर होगा, यहूद सपोर्ट करेंगे। 3 बातें हैं, 2 बातों को समझ लीजिए। अब तीसरी बात में लेता हूं, यहूदी के घर में पैदा हुआ, यहूदी के घर में मरने वाला है। तो जिसके घर में वो मरने वाला है, इसका मतलब यह है कि यहूदियों का ऑलरेडी इसको सपोर्ट रहेगा। यहूदियों के साथ मिलकर वो लोगों के साथ फितना मचाएगा, लुद में जाकर ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे, गोया यहूदियों का सपोर्ट उसको उस वक्त होगा। यह बात साफ जाहिर कर रही है कि दज्जाल के मुकम्मल सपोर्टर यहूद हैं जो उस जमाने में जाहिर होंगे। वो जमाना कितनी दूर है, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, अल्लाहु आलम। सपोर्ट करने वाले वो लोग हैं। इसका मतलब है कि यहूदियों के सामने बात साफ है, क्लियर है कि दज्जाल जरूर ब जरूर आने वाला है और हम उसके सपोर्टर हैं। यहूदियों को मालूम है, हमको भी
اب معلوم ہوا ہے یا کسی کو معلوم ہوگا، لیکن یہودیوں کو ان کی کتابوں کے ذریعے، ان کے علماء کے ذریعے بات معلوم ہے کہ دجال ضرور ظاہر ہونے والا ہے، اس لیے جا کے اصفہان میں ابھی سے پناہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اب آئیے، یہود دجال کے سپورٹر ہے اور دجال اسلام کا دشمن ہے، تو عام طور پہ اگر ہم معاشرے پر نظر ڈال کے دیکھیں، ایک معمولی فتنہ، مثال کے طور پہ کوئی لیڈراں بھی فتنے تھے آج کے، معمولی فتنہ اگر کہیں آ رہا تقریر دینے یا جلسے میں، تو اس کے سپورٹراں کیا کرتے؟ سجا کے کر کے بینرز وغیرہ لگا کے ویلکم ایم ایل اے، چور، کھانے پینے سو والے جو بھی ہیں ویلکم، اپنے جس سے اس